नमस्कार बंधुजान नमस्ते बंधुजान नमस्कार वणक्कम खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल मेघांतरिकी वंदनम जय स्वामी नारायण जय श्री कृष्ण जय जनेन्द्र हमारे इस्माइली भाई बंधुओं को बोलते या अली मदद मौला अली मदद बोलते हुए सारे फीजी बदनीसा मुल्ला बंधुजान हम आगे हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं से फालतू बाबा एंड ऑफ कोर्स माय सेल्फ फालतू रानी लेकर आपके लिए एक और ड्राइव टाइम दैट्स गोना मेक इट टोटली एक्साइटिंग एंड टोटली मस्तानी बंधुजाने True that, बंधुजान ऑफ कोर्स आपको बोलते कि ऑफ कोर्स आज है बेरिया बकबक है ऑफ कोर्स टू एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग 4th of July wish you all a very happy 4th. That is right, and let us all march forth on this July 4th. Oh, that was so forced. What? That was good actually. Good. Yes, I know. Well, Baja, let me tell you, आज हमारे बदलों have come together to actually give you another experience like no other. That is right. Another experience like no other. What a nice way of saying it, right? Altu Baba. Yeah, what? I don't know where you get all this stuff. I'm very creative that way. Yeah. And of course, Baja, let me tell you, let's first welcome our Babu Mashai, who actually is already logged in with us. Babu Mashai, কেমন আছেন? Babu Mashai. Hey, Altu, how are you guys doing? We are Happy doing- July 4th. Yes, happy July 4th to you as well. क्या आपने बारबेक्यू किया कि नहीं? क्या? बारबेक्यू नहीं किया? बारबेक्यू नहीं किया? हाँ, एग्जैक्टली आलतू बाबा, बारबेक्यू. किसके बारे में? मेरे को पूछे. बारबेक्यू करना अभी मना है, बाहर जाना है बिल्कुल मना है एक्चुअली. जो भी करना है घर के अंदर ही करो. हाँ. And You know, actually, this is Independence Day, right? हाँ. So all, I think लेकिन majority. डेफिनेटली ये ड्यू रहा तो जब ये सब या हाँ बोलो. बोलो. जब अल्तो बाबा Yes. बार भी क्यों Barbecue. कोई- Good one. That was a Bandhu Ganesh with us. And yes, but I think, Babusha, the point I'm making is over here. ये Independence Day तो है ही. हाँ. But everybody is feeling totally, I think not independent, but actually totally sheltered. Right. Yes, matlab, they've been asked to shelter in place, and there'll be one more Independence Day after they actually open up everything. Right. I have a very strong feeling January 1st, 2021 is going to be the Independence Day. I hope Whole everything world is, will say, we are free of coronavirus. Yay! and then we will be dealing with another virus. What? Yeah, right now you heard about the swine virus, something that's come out in China. Remember we talked about it? Oh, really? Yeah. I'm There's telling you, something else man, with regard they to are pigs. brewing no, something no, then. after this opening another virus will be there, that is GGC virus. What? Hey, that's not it's called Kida. It's not virus. It's That called is Gale ka Kida. Kida. Gane ka Kida. Yes. And that is not and it's highly janleva. contagious. Yes. Highly contagious. It is not, but the good thing is it's not janleva, it's kanleva. Yes, exactly. It's not You know? Janleva. It's Yeah. Kanleva, it's Manleva. Yeah. Alright, so Bhavashai, तो आज का topic जो है, we have, let me ask Faltuni, do you want to start off with the theme for today? What's going to happen in our show? देखो आज 4th of July है, Yes, right? very true, And I like this. obviously we can all sing, oh say can you see, which we can all sing, but then there's only that many American songs that we can sing, right? But हम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, we've come from, most of us have come from India. Yeah. And some of our bandhus, of course, we do have Pakistani bandhus and Afghani bandhus who also are part of our bandhutva, Fijian, Sri Lankan bandhus as well. Yes. लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे बंधुजन कि इस वीक का थीम क्या होना चाहिए, स्पेशली टुडे बीइंग द 4th of July, Uh-huh. हमने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन एंगल. Uh-huh. यानी कि जहाँ से इंडिया से लोग कितने रीजंस के लिए बाहर निकलते हैं. कुछ लोग बेटर लाइफ के लिए निकलते हैं, फॉरेन चले जाते हैं. कुछ लोग, सम पीपल कम इन सर्च ऑफ द अमेरिकन ड्रीम लाइक Yeah. मोस्ट ऑफ अस ओवर हियर हैव. कुछ लोग कोई लोचा करके इंडिया में वहाँ से भाग आते हैं, राइट? कुछ लोग हेल्थ रीजंस की वजह से आते हैं. कुछ लोग फैमिली यहाँ पे हैं जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, उसकी वजह से आते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस, राइट? Yeah. तो हमने सोचा आज क्यों ना हमारे जो फॉरेन वाले अरमान है और जो हमें खींच के लेकर आया इंडिया से. पढ़ाई के लिए कुछ लोग आते हैं, एंड देन यू रियलाइज द वे ऑफ लाइफ हियर एंड यू काइंड ऑफ सेटल डाउन, यू फॉल इन लव विद समबडी. एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल फुली अ बेड ऑफ रोजेस. बहुत सारे मुश्किलें भी हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं हमारी, वो भी तो है. आई मीन द कल्चरल क्लैशेस होते हैं हमारे, और फिर कभी कभार रेसिज्म भी एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग. Yeah. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. सो दैट्स व्हाई वी सेड
why not talk about that foreign attraction that all of us have? वाह वैसे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे मूवीज़ भी हैं जहाँ पे लोगों मतलब इट्स नॉट जस्ट अमेरिका, यूके, बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड ऑफ कोर्स यू नो टू पाकिस्तान, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट आल्तो बाबा, ऑस्ट्रेलिया, correct. यहाँ वहाँ लोग चले जाते हैं. तो हमने सोचा वो डिपिक्ट भी हुआ है तो क्यों ना हम लोग उसके बारे में आज बात करें. वेरी ट्रू वादरानी. एंड बाबा मशाई, आप तैयार हो? या मैं बिल्कुल तैयार हूँ एक्चुअली. तो हो जाए फिर. या तो फाल्तू रानी ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया. हर किसी का कुछ ना कुछ तो मोटो या लक्ष्य होता है जिसको फुलफिल करने के लिए वो मतलब इंडिया तो है ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी कभी कभार जाना पड़ता है तो टू फुलफिल दोस ड्रीम्स. एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज है कि हम लोगों के कुछ लक्ष्य, कुछ ड्रीम्स जिसको फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट दोस डिटेल्स. मेरे को लगता है कि अमेरिकन ड्रीम, अचीविंग अमेरिकन ड्रीम इज एक्चुअली अबाउट यू नो हैविंग अ सेटल्ड लाइफ, ओनिंग अ होम, हैविंग अ कार विद सबर्ब्स में एट वे, हैविंग आईटी जॉब ऑल स्टफ, राइट? आई थिंक इट्स मोर लाइक यू नो द इंडियन ड्रीम इज प्रीटी मच लाइक गोइंग टू अमेरिका एंड हैविंग द ड्रीम. Or fulfill the dream. Sorry. Fulfill the dream. You know, कभी कभार you know पहले I think आजकल के ज़माने में और भी इजी हो गया है, राइट बाबू मशाई, वेर you know काफ़ी सारे लोग इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करते हैं, डबल करते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कुछ ऐसा, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करते हैं इंडिया से, और फिर यहाँ पे एमएस के लिए चले आते हैं, राइट? इट्स ईजियर नाउ. उस ज़माने में मतलब you know we're talking about way back, like our moms and dads wala zamana. How would, I mean, you know, were they all looking to come to, I mean, the United States, or were they looking to go foreign ka jo ye tha, you know, was there anything that struck you which why they would go abroad? मैं बताऊं? हाँ बोलो. Yeah, interestingly, Vadroni, yesterday we had a very interesting conversation with one of our bandhus, right? And Bhagwat ji unke naam hai, and he was actually talking, and he came here in the time of 70s and 60s. Pretty much when the, you know, many movies started actually exploring going out, right? Doing outdoor shootings and all that stuff, right? So, Bhagwat ji, उन्होंने बताया हमें कि he came here for better opportunities, simple and plain. Yeah. He just came here because opportunities were there, better opportunities, so I went abroad is what he said. Right. Right. So people do come out. उस समय क्या है ना, मतलब इतना एजुकेशनल एक्सप्लोरेशन भी नहीं था. मतलब सब बाहर का स्टडीज का तो उतना कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन भी नहीं था. आजकल का जो जमाना है वो इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, सबके पास इंफॉर्मेशन है. एंड बट उस समय वो नहीं था. उस समय आने के लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ही कसरत करना पड़ते थे. तो डेफिनेटली उस समय जो लोग आए, so definitely they have paid the price and they came here to fulfill their dreams. Correct. And but nowadays it's very easy to come here and struggle तो रहेगा, कहीं पे भी जाओ मतलब struggle तो रहेगा, but getting into that country, especially country like America, is very easy nowadays. लेकिन उस जमाने में I think a little difficult if you only if you're well off and you have like you know a lot of money, were you able to afford to take a trip anywhere? Why America? For you even to go to the neighboring countries like Japan or Singapore, right? It was very expensive, right? Yeah. Actually जापान से याद आया, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना बाबू मोशाई एक ऐसा मूवी है जहाँ पे मतलब जब अच्छे सेटल होना तो इंडिया से निकलने का मन नहीं करता है टू एन एक्सटेंट, right? I mean, आज भी ऐसा ही है, right? When you have a good, you know, you're settled really well, you really don't want to go anywhere because वहाँ पे जो नौकर चौकर, you know, you have a lot of support there in India. नौकर चौकर support, huh? Yeah, you have a lot of you have everything there, right? So only reason that there's one movie that was made where one of the reasons that the hero ventures out, right, out of India, was because of family reasons. Correct. Right? एक बहुत ही खूबसूरत मूवी आई थी जो हमारे जॉय मुखर्जी, राइट? जॉय मुखर्जी, yes. जॉय मुखर्जी and I think आशा पारेख. जॉय मुखर्जी, या एग्जैक्टली. लेकिन उस मूवी में ऐसे इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है कि ये कल्चरल
क्लैश होता है कि हमेशा हर एक माँ का जो फियर रहता है कि मेरा बेटा बाहर गांव जाएगा तो वहाँ की लड़की को लेके आ जाएगा. Intercultural marriages. Oh my Yeah. God! वो ज़माने में देखा क्या क्या सोचते थे लोग. But actually, remember the story of the movie. Also, the movie story actually goes something like, one of the sons actually would have gone abroad and would have married a local girl. Local chokri, Japanese girl there, right? Yeah. लेकिन good part in that means all those movies during those era, especially for those Indian people, we didn't have any opportunity to go there, right? But through movies, in their director eyes only, we used to see all those places, and we used to dream about those, and that's what for a lot of people that dreams become strong to go abroad and do something. Correct. And Nabi Banujan, now what we're going to do is we're going to make, if you haven't seen the movie of Love in Tokyo, we're going to take you on a trip to the voice of our dear Bandhu Falguni ji. How about that? Yes. Yeah. Actually, if you haven't seen that movie, we'll tell you what happens in that movie. No, don't do that. No, you don't want to? We don't want to break the suspense. It should be a good matinee watch for you guys tomorrow. Yeah, it'll be Family के साथ बैठ के देखो, it's very interesting by the way. Right. So, फाल्गुनी जी से पूछते हैं, आपने वो मूवी देखी है फाल्गुनी जी, लव इन टोक्यो? हाँ मैंने देखी है. अच्छा. और आशा पारेख में इतना बहुत ही अच्छा डांस करती है. वो बेसिकली टीवी पे डांस करती है. और जो हीरो है ना मूवी के, वो उनको टीवी पे देखते हैं. करेक्ट. छोटा सा स्क्रीन था उस जमाने में, वेरी नाइस छोटा सा स्क्रीन है, उसके ऊपर हीरो उसे देखता है और वो अच्छी लगती है, उसे पसंद आ जाती है. वेरी गुड. उस फिल्म में भी एक्चुअली आशा पारेख ने सेम टू सेम इयरिंग पहना जो आपने पहना है. Yeah. Before you go to the song, right? Just one quick question to both of you, फाल्गुनी and दीपक जी. आप लोगों का सफर कैसा रहा? मतलब यहाँ पे आने का जो कैसा प्लान था, कैसे हुआ? मतलब आप फॉरेन कैसे आए? हाँ, फॉरेन कैसे आए? एक्चुअली आप यहाँ फॉरेन 20 साल पहले आए हैं, ज्यादा टाइम हो गया. और मेरा फैमिली यहाँ था, और सबसे बड़ा मेरा ड्रीम था मेरे बच्चों को वेरी नाइस एजुकेशन, हायर एजुकेशन देने का था. और मुझे हमने 13 साल वेट किया ग्रीन कार्ड के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे ब्लड रिलेशन पे स्पॉन्सर किया था, मगर इट टुक 13 years फॉर अस टू कम हियर एंड हैव ग्रीन कार्ड. बट यहाँ आके हमारे भगवान की मेहरबानी से सारे ड्रीम पूरे हुए. बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हुई, हमें रियली अच्छी जॉब मिली, और भगवान के आशीर्वाद से अच्छी तरह सेटल हुए. और आल्तो बाबा, फाल्गुनी रानी, बाबू मोशाई, सबसे अच्छा ड्रीम कौन सा हमारा यहाँ पूरा हुआ है आपको मालूम है? वर्ल्ड फेमस सिंगर बनना. वर्ल्ड फेमस सिंगर बनना. सबसे अच्छा ड्रीम हमारा यहाँ जीजीसी पे रेडियो पे गाने का हुआ. आई डोंट थिंक इंडिया में कभी हमें ये गाने का चांस मिलता था. जब आप तीनों की वजह से हमें एवरी सैटरडे यहाँ गाने का चांस मिलता है. हाय ये मेरा कुछ नहीं, सब बाबू में शायद गांव से लोग जानने लगे हैं. लोग जानने लगे. ये ड्रीम तो हमारा सबसे अच्छा पूरा हुआ. ये सब तो मेरा कितनी सारी सहेलियां हो गई. अरे वाह. ये ऐसे मत बोलो, आपके बाजू बैठी है तो ऐसे मत बोलो. अभी उन्होंने बर्थडे मनाया. कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ. वेल वैसे तो इनका लव इन यूएसए हो गया था, लेकिन आई थिंक लव इन टोक्यो से एक गाना मांगता है फाल्गुनी. वी नीड अ सॉन्ग फॉर दैट. एग्जैक्टली. या हो जाएगा. तो किशन भाई, एक क्वेश्चन है कि वो माइक पे गाए या विदाउट माइक पे गाए? आप बिना माइक के गाओ, मजा आता है. अच्छा, होने दो तो. ओके, रेडी.
चलिया को मैं क्या पहचानूं, जाने क्यों मेरा नाम पुकारे, जाने क्यों मेरा नाम पुकारे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया आज इशारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। जब से गया है मोरा बचपन, नैना चंचल नन्हे है मन, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया आज इशारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। रात रात भर निहराए, बिन चाहे वो यार आए, काटो रतिया दिल किन तारे, काटो रतिया दिल किन तारे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया आज इशारे, अखियों से कर गया आज इशारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, मतवाला आया मेरे द्वारे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये मतवाला आपके बाजू बैठा ना? वही तो है, वही। अच्छा, वाह वाह। वो मेरा गाना आएगा, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे तब मैं सारी बात बताऊंगा। नहीं, उनके आप द्वारे से question- मैं कैसे गया था। नहीं, एक मिनट। आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट हमारे दीपक जी मतलब जो है ना हमारे, हाँ। एकदम रसिक है, एंड कोई तो वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है। तो बट थिंग इज, सॉरी अबाउट दैट, ये टोटल रियलिटी रेडियो है जहाँ पे वी एक्चुअली हैव एवरीबडी ट्यून्ड इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, सो इट्स एक्चुअली अ वेरी हाइब्रिड काइंड ऑफ रेडियो शो। अगर आपको यकीन नहीं होता जाके मैं फेसबुक चेक कीजिएगा, यू विल नो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। हमारा स्टूडियो में तो हम हैं ही, राइट? स्टूडियो एम में चल रहा है शोज, लेकिन व्हाट वी हैव इज वी हैव बंधु डायरेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Bay Area right now. Right. The next hour after 7 p.m. you'll see people coming from different parts of the world also. Exactly. Now it's become like a pay with peace people. The borders have totally just disappeared. Yes. Borders have disappeared, but that's what we have done right now, and that's what we love about the show today. And हाँ, कभी-कभार थोड़ा glitch which होती रहती है, but thank you for actually adjusting with us and bearing with all the technical issues we come up online. But okay, here's the thing. So Bhaumesha, ये गाना आपको अच्छा लगा, right? या बहुत बढ़िया लगा। एंड ओवरऑल इन दिस मूवी एक्चुअली जापान के मतलब बहुत सारे शहर को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब लुकिंग एट द फोटोज ऑफ दोस ड्यूरिंग दैट ईयर एंड टुडे,
Yeah. एक्चुअली जापान का वो सारे प्लेसेस और भी सारे इम्प्रूवमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड एवरीथिंग. सो वन ऑफ माय ड्रीम्स एक्चुअली ट्रैवलिंग वर्ल्ड, मतलब जितने सारे कंट्री है सबका मैं विजिट करूं. तो डेफिनेटली जापान के ये जो गाने हैं हाँ. इनमें टोक्यो. वो सारे शहर भी ऐड हो गया. Very good. डेफिनेटली इट मींस एक्सटेंडेड माय ड्रीम्स बेसिकली. तो बचपन में मेरा एक किस्सा बताता हूँ आपको फाल्तोनी. I don't know if you noticed फाल्तोनी, because my dad used to be a big proponent of reading. हाँ. So he used to always make sure we read one book at least. हाँ. In every summer holidays we should read at least 1 or 2 books. We should finish reading. Right. Books as in the regular books, not the textbooks, novels, something like that. Okay. हाँ. तो वो बोलते थे कि वो कहावत था कि if you read a book, you know, you actually are traveling to a particular place because writers write it so beautifully. Right. So I used to always tell him, you know, मार खाता था मैं always like, why should I read a book? I can watch a movie. That's true. That's actually true. Well, in fact, he did that. He actually brought us movies to watch to actually expand our knowledge about the world. Yeah. We saw movies like Guns of Navarone, Roman Holiday. Roman Holiday, and even the Sound of Music. Love in Tokyo also. My Fair Lady. Yeah, and I think there also was a bunch of movies came up where Indian cinema was going out into the world and doing stories. एक ऐसा story है. Bro, so thing was, this particular situation, of course, where a family के लिए किसी ने बाहर गया to get their family income, right? एक ऐसा भी है जहाँ पे story where people actually working in those places and they fall in love. Huh? Yeah, they go to places for tourism purposes. For tourism purposes. Yeah. Many people used to go to other parts of the world for tourism purposes, to enjoy the world over there, immerse themselves in the culture and everything. जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है तो मैं थोड़ी देर के लिए ये जाती है ना, साइबेरिया जाती है ना, जाती है क्या, चली जाऊंगी. तो जाती है ना ऑलवेज. क्या जाती हूँ, कुछ नहीं हुआ. इस बार नहीं गई और कुछ नहीं. इस बार कोरोना की वजह से नहीं गई. मैं भी ऐसे ही इस बार कोरोना की वजह से मैं गया. I didn't go to Switzerland today because of corona. But regularly, Deepak ji, regularly I don't go to Switzerland because I don't have money. कोई बात नहीं. Yeah, that's all. हम साथ चलेंगे. Very good. Hey, but I was going to tell you, Baba Shahid, the thing is, ये जो concept, आज का concept लेकिन एक बात तो है, अगर हम लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हाँ. या तो स्विट्जरलैंड को हमारे पास लेके आते हैं ना. वाह, ये हुई ना बुंदू वाली बात. लेके आता है यहाँ पे. And yes, I was talking about that, right? एक film आया था, I remember very clearly. This particular movie, we also saw it when I was a kid. My parents actually brought this movie to the thing. That was one of the experience for us to understand because we became big fans of Shami Kapoor. Yeah. Watching all the series of movies. Shami Kapoor एक film आया था, फाल्तोनी, actually was very interesting. In a foreign land, he finds love. हाँ. And the interesting part is that foreign land में the challenges they have, you know, even they're the villains. मतलब So his girlfriend is kidnapped. अच्छा. And all those things. A very thriller kind of movie. Thriller movie था. Yeah. And actually it was more. I think it was more of a tourism movie or a propaganda film for Paris. Oh wow. Right? Evening in Paris के बारे में बात कर रहे हैं. Yes. दीपक जी, आपका क्या ख्याल है? ये मूवी में एक्चुअली वो सारे दिखाए गए थे. बॉलीवुड मसाला तो है लेकिन मेन जो उद्देश्य है, मेन जो लक्ष्य था वो उसको था मतलब फॉरेन लोकेशन को प्रमोट करना इंडिया में, ताकि बॉलीवुड में वो मूवी चले एंड फॉरेन लोकेशन से भी टूरिज्म का भी इम्प्रूवमेंट हो. लेकिन दिस पर्टिकुलर मूवी एक्चुअली शक्ति सामंत का मूवी है एंड थ्रिलर मूवी है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द मूवी स्टोरी, बट इज अ वेरी गुड मूवी. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम लोग जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं राइट, उसका बहुत सारे मीडिया होता है, चाहे वो रीडिंग हो या किसी से सुन के जान के या मतलब आईज और या वॉच करके, तो उसमें जो इफेक्टिव है 89% और 90% इंफॉर्मेशन यू कैन अब्सॉर्ब simultaneously by watching something. इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हारे पिताजी ने जो की है वो मूवी लाके दिए ताकि you can absorb and have those information for a long time. Yeah, he decided that there's no point in making this guy read. He's not going to read. Sorry. अच्छा, by the way, तो today I want to ask दीपक जी, आप कभी फ्रांस गए हो, पेरिस? मैं फ्रांस नहीं गया. मैं पहले बहुत छोटा था तब सिंगापुर, पटाया और ये सब वो कंट्री में गया था. कभी आपसे पूछेंगे कि आपने फाल्गुन जी कैसे पटाया, लेकिन फिर भी अभी चलिए. हाँ, वो अलग शो है. नहीं वो शो अलग नहीं है. वो बाद में आज वो फॉरेन किए तो मैं बहुत छोटा किस्सा, बड़ा किस्सा छोटे में सुना देता हूँ. प्लीज आप ध्यान गौर से सुनिए. अभी फाल्गुनी ने जो गायन गाया, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, राइट. तो मैं
तो मैं उनके द्वारे पे उनको देखने गया था। ओह उनको देख के ही मेरा तो होश कोश गवा बैठा मैं। so sweet. फिर मैंने कहा हमारी तो हाँ है आपसे, आपकी भी हाँ है। तो फिर तो उन्होंने बोला कि सब कुछ, हमारी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि आप तो इतनी हसीन है, तो आपकी हर शर्त हमारे सर आंखों पे है। इसीलिए आप मैचिंग शर्ट पहनते हो, राइट? हाँ नहीं तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा क्या शर्त है, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ अगर शादी करनी है तो आपको अमेरिका नहीं जाना है, कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना है। वो सही बात है, मैं दिस इज अ ट्रू स्टोरी। इनकेस मेरे पेरेंट्स को छोड़ के मुझे नहीं आना था। तो उन्होंने बताया कि फॉरेन नहीं जाना है तो मैं शादी करूंगी। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, आपने हाँ बोल दिया। मैं तो चांद तोड़ने की बात सोच रहा था, लेकिन आपने छोटे में बता दिया। छोटे में बता दिया। स्लो क्लैप्स। तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी कि कभी भी हम फॉरेन नहीं जाए, मींस के विदेश नहीं सेट होंगे। तो हाँ होगी, शादी हो गई। फिर कुदरत का करिश्मा देखो, मैं उन्हें यहाँ लेके आई, वो मुझे यहाँ ले आई। वाह। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार है वहाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपकी चाह यहाँ पे आ रही थी, तो आपको राह मिल गया यहाँ पे आने का। तो वैसे तो वो हम आ गए। हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम, ढूंढ के आ गया अपना। That's very good. The thing is, ऐसे ही शम्मी कपूर also has same love for his girlfriend. हाँ वो आसमान से टपके ना, आसमान से आया फरिश्ता। वाह। तो आप अपना किस्सा सुनाइए गाने के माध्यम से for the same movie. जरूर। तो मैं वो माइक पे गाऊंगा, चलेगा? कि आप जो चाहे गाओ, हम सुनेंगे, हमारा काम सुनना है। तो उनसे माइक से जाने मंदिरारा, एक नजर इधर भी, आया फरिश्ता प्यार का सबक दिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक दिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अजी कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अजी कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे।
दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, तेने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, तेने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना तो प्यार है तुमसे। सारा हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों में बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों में बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे। अरे वाह वाह, थैंक यू। अरे हाँ बोल दो फागरे जी, हाँ बोल दो, इतने प्यार से मांग रहे, पूछ रहे, कह दो कह दो कह दो कि तुम आप हो उनकी, वरना हाँ गाना कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, और भी गाएंगे गाना। इस पिक्चर में एक्चुअली सब गाने बहुत ही सुपर डुपर हिट है, एंड ऑफ शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, लेकिन सारे गाने सुपर डुपर हिट है। और एक बात एक्चुअली, इवन दो मूवी नेम से एन इवनिंग इन पेरिस, but lot of shooting from other part of the world like Switzerland, Beirut and Niagara Falls also has been shown in this picture. So very nice movie, and one of the first initial foreign location, I would say, Bollywood movie. Very nice movie. गुड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक्चुअली और एक सिटी जो मेरे बहुत दिल के करीब है, न्यूयॉर्क सिटी। हालांकि अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है, लेकिन न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ आई वुड से ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ, राइट? Yes, yes. in The terms of city that transactions never and everything. sleeps. Yeah, city never sleep, but actually एक और चीज खराब इसलिए कि they have actually rejected anybody coming from California into New York. अभी हाँ बैन कर दिया है कैलिफोर्नियंस को वहाँ Yeah, पे। we can't go there Not right only now. California में कोई भी अगर मतलब दूसरे स्टेट से आए उसको क्वारंटाइन से जाना पड़ेगा। That's a Wow. हाँ rule they have applied. हाँ But I'm बात कर रहा हूँ मतलब हाँ ट्रैवलिंग की और उनके लाइफ स्टाइल की। बहुत ही खूबसूरत लाइफ स्टाइल है, एंड वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पहले से आके मतलब उस जमाने में आए थे, स्पेशली द गुज्जू फैमिलीज एंड पंजाबी फैमिलीज, राइट? स्पेशली गुज्जू फैमिलीज, they actually control most of the economical situation, I would say. इन तो- न्यू जर्सी राइट, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क वो वाले। एग्जैक्टली बहुत सारे इंडियन डोमिनेटेड आई वुड से दो स्टेट अगर कहा जाए हाँ तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी है। हाँ तो 2000 में एक मूवी आया था जिसका नाम था कल हो ना हो, हाँ एंड बहुत ही उस समय तो मैं मतलब कॉलेज तो हो गया था, अभी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किया था, लेकिन this is one of the movies that actually helped me to boost up my dreams to ओह come to USA. अच्छा And New York, they showed in a very good manner, and वहाँ पे एक गुज्जू फैमिली का उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया था, हाँ and बहुत ही प्यारा मूवी है। but the मतलब gist हाँ of the movie is लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो वो सब छोटा है, मतलब उसका अगर आप सही ढंग से बैठ के अगर हल निकालने की कोशिश करोगे
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका मींस हल नहीं है, सब प्रॉब्लम का हल है। लेकिन हम लोग क्या है, मतलब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग डर जाते हैं, कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हो उसमें ही पहले से ही डर हो जाता है, क्या होगा, मतलब बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, राइट? लेकिन नहीं, दैट इज द जिस्ट ऑफ द मूवी। कितने भी बड़े, मतलब बड़े या छोटे जो भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन हमेशा रहता है। राइट लेकिन एक चीज़ है उस पर्टिकुलर मूवी में ना, बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिखाया कि हाउ फास्ट पेस्ड लाइफ इज फॉर न्यूयॉर्कर्स। वो प्रीति जिंटा का कैरेक्टर हमेशा ऐसे खड़ूस, मतलब लाइक यू नो ऑल द टाइम इन नॉट लुकिंग अप, एवरीबडी इज लाइक गोइंग झुक 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 झुक, दैट्स द वे लाइफ इज। ऐसे बहुत खूबसूरती से दिखाया। एंड एट द सेम टाइम the best dialogue in that movie for me is जहाँ पे वो सतीशा कहते हैं ना, हाँ भाई अमेरिका है, कुछ भी हो सकता है, like every single time he'll say कुछ भी हो सकता है, अब अमेरिका है तो हो सकता है, you know, you never know. So एक चीज यार, very disappointed with the movie. The movie was very let down for me यार. why man? I came to New York, no band was there dancing around with me when I was dancing that song. There was no pretty woman also. No pretty woman also, unfortunately. क्या करे यार? Anyway. Even same thing happened with me also. Right? Came down here around 8 p.m. I thought बहुत सारे लोग रहेंगे। कुछ जब नहीं, मैं हाईवे पे चढ़ा, देखा पूरा कर्फ्यू जैसा लग रहा है, कोई एक रोड पे। Exactly. हाँ, but anyway, you're right about अरे that. आप कहाँ गए? मैनहट्टन जाना था। मैनहट्टन में सारे क्लब्स इन यू नो नाइट लाइफ वहाँ पे है ना, मेरे साथ जाना था। नहीं, I mean you know you should like पता नहीं, तो फिर तो फ्लाइट से डायरेक्ट वहीं पे जाते थे। हाँ। हम तो बहुत भोले हैं यार, तेरे जैसे नहीं है हम लोग। अरे तुम लोग क्वींस में रहे होंगे जहाँ पे इंडियन देखो, मैन है तो क्वीन के पास जाएगा ना, तो वुमन है तो मैन हट जाएगा ना। अबे क्वींस लोकेलिटी है तो हमें वहाँ क्या, का। गरीबों का वही होता है, क्या करे। हाँ तो हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया, राइट, देयर इज आल्सो द फैक्ट दैट पीपल कम हियर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, स्पेशली बॉलीवुड से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। शाहरुख खान भी इसलिए क्या आया था ना। हाँ, उस मूवी में वैसे ही दिखाते हैं, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ अ पंजाबी गर्ल एंड अ गुज्जू गाय गेट टुगेदर, दैट इज लाइक दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी जनरली होता है, बट इन दिस मूवी दे स्विच्ड इट अराउंड। Yeah, and always Kanta Pen is surprised. एग्जैक्टली। बहुत ही प्यारा सा मूवी है, एंड गाने तो माशाल्लाह सुपर हिट है। एंड शंकर हसन लॉय का मूवी म्यूजिक कंपोजिशन है बहुत ही बढ़िया। एंड हालांकि एंड में थोड़ा ट्रैजिक मूवी मतलब हो जाती है जब हीरो का मौत हो जाता है, तो बट एनीवे ओवरऑल मूवी इज रियली रियली नाइस। बट उसका एक गाना है, कल होना हो हर घड़ी बदल रही है, तो मैं चाहूंगा कि अगर मेघा जी वो गाने सुनाए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेघा, बिफोर दैट आप बताओ, व्हाट वाज योर फॉरेन ड्रीम? आप कैसे आए यहाँ पे, क्या था आपका मतलब सपना? मैं जो पहली बार अमेरिका आई थी तो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क ही आई थी। हाँ। तो व्हेन आई केम, सो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट से अपनी कंपनी की तरफ से आई थी। सो आई वाज वर्किंग फॉर अ क्लाइंट देयर, सो अपनी फर्म की तरफ से मैं वहाँ आई थी। एंड पहले 1-1.5 साल वही रही, वापस इंडिया चले गए घूमने। सबसे पहली ट्रिप कैलिफोर्निया लगाई थी, क्या पता था शादी के बाद कैलिफोर्निया आके सेटल हो जाएंगे। वाह, वेरी गुड। देखा, सो आई न्यूयॉर्क थी, पहले 1-2 महीने न्यूयॉर्क घूमा। और फर्स्ट ट्रिप हमारी जो भी प्लान होके, जैसे भी थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए थे, देन वी सेड ओके फर्स्ट ट्रिप लेट्स गो टू एलए, हॉलीवुड देखेंगे। एंड इस साइड आए थे घूमने, एंड पता नहीं था कि सारी जिंदगी अब इसी नहीं, आप पता नहीं था कि आप यहाँ पे आके बहुत फेमस हो जाओगे, राइट? वो तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि यहाँ के इतना फेमस हो जाओगे, मंच मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन आप मंच मिला तो आप इसका पूरा फायदा उठाइएगा और एक झट से गाना निकाल दीजिएगा। बिल्कुल। एंड ये गाना गाएंगी मेघा जी, हमारी प्यारी मेघा जी, उस गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, राइट? द टाइटल ट्रैक, राइट? Yes, absolutely. So happy 4th to you, Sally Burton Hoyle. Thank you so much for joining us. जिंदगी छाँव है कहीं कहीं है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो हर घड़ी बदल यही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो।
चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। कुसली के साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो उदासता कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। Wow. It's actually indeed a beautiful composition जो हमारे शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किया था. In fact, that song always leaves that music na that bit is like so haunting. नहीं बाबू मोशे? Yeah, yes, very nice and movie actually बहुत ही खूबसूरत थे. जो रोल सैफ अली खान ने प्ले किया था बहुत ही बढ़िया, एंड शाहरुख खान ने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था. हालांकि सैफ अली का जो रोल था स्टार्टिंग में अभिषेक बच्चन को ऑफर किया गया था, विवेक ओबेरॉय को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में सैफ अली खान ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि कुछ होता है मैं सैफ अली खान को भी सेम ऑफर किया गया था जो सलमान खान का रोल था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. इसीलिए वो एंड ही डिडंट वांट टू रिग्रेट फर्दर, इसीलिए करण ने जब ये ऑफर किया तो सैफ अली ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन वो बहुत ही बढ़िया मूवी है. हालांकि मतलब मूवी का जो स्टोरी है पार्ट कहीं से बहुत सारे स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है. I think the way they've depicted each characterization उस मूवी का बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट जो struggles दिखाते हैं, I mean अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि what is a motivation for somebody to travel overseas और foreign आने का क्या motivation हो सकता है. इस मूवी में हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि struggles क्या हो सकती हैं. How does ये single parent household कैसे होता है और एक मेन स्ट्रीट बिजनेस का क्या हाल होता है. हाँ. एंड somebody who's been here for age second generation का क्या ये mental ये होती है. Very nicely shown actually. I like the movie. Yeah. And एक चीज है कि one thing I totally like, characterization की बात की तो ना I totally understand one thing. एक कैरेक्टर को भले ही ज्यादा डायलॉग नहीं है, हाँ. लेकिन इम्प्रेशन जमा के रखी है इसमें. कांताबेन. The culture shock Kantaben has. हाँ.
बहुत अच्छी तरह से दिखाया उन्होंने। इवन क्या करें? कांताबैन इतना फेमस हुआ जाके बाद में करण ने उसी के ऊपर बहुत सारे मूवी बनाया जैसे दोस्ताना। नहीं मेरे ख्याल से ये कांताबैन उसके पर्सनल लाइफ स्टोरी से निकाला है कोई। हाँ। मेरे ख्याल से उसका कोई मेड हुई रहेगी तो उसको देख के बहुत परेशान हो गए। कांताबेन ऐसा Probably. होता है। नहीं आई डोंट नो हवा अखवा है भाई, इट्स अखवा। हम Yeah. लोग इसको हवा देते हैं बस इसलिए हवा है। हवा Yeah. yeah but yeah that was one of the I mean बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे struggles दिखाए हैं और जो glamorous aunties होती हैं उनके बारे में दिखाया है। they've like shown every single thing। सेकंड हैंड जवानी बोलो तुम। हाँ second hand जवानी sorry doesn't matter। So तो क्या हुआ? It happens। आंटी मत बोलो ना। आंटी मत बोलो। हाँ exactly। तो लेकिन एक बात तो सही है राइट, दिस इज दैट इज द टाइम एक्चुअली व्हेन इंफॉर्मेशन सबके पास आने लग गए। जैसे कैसे यहाँ पे अब्रॉड में आ सकते हैं राइट, सबके पास अभी ये नॉलेज हो चुका है मत थे। एंड इवन पीपल नोज दैट एजुकेशनल इज वन ऑफ द थिंग वी कैन कम हियर एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड आल्सो वी कैन कम हियर। right बट इसके साथ साथ और एक चलन भी अभी स्टार्ट होने लगा है हाँ कि कोई अगर ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश है, चाहे वो इंडियन जनरेशन हो या नॉन इंडियन जनरेशन हो, हाँ। उनके साथ शादी करके यहाँ पे आके बैठ के आप यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड बेसिकली। well yes and no actually बाबू मशाबी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हो गया है। I mean I'm sure all our बंधुज know that आपको मालूम है जो स्टिमुलस मनी जो रिलीज किया गया केयर्स मनी केयर्स एक्ट का, अगर किसी की शादी अमेरिकन सिटीजन भी हो, अगर उनकी शादी एक इमिग्रेंट से हुई हो that is somebody who is not got a green card or who is not on that family will not get a stimulus check. Didn't get a similar check. They didn't get a stimulus check. He said it will not be given to them. Yeah, that's true. But I hear a lot of news nowadays. Students also, they come here, studies here, and they work somewhere, and they get married to some non Indian or non जो इसके पास green card हो। हाँ। And मैं मतलब ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, मतलब ये मतलब yeah. सच है एक्चुअली। हाँ हाँ कि- तो वो बहुत होता है एक्चुअली इनफैक्ट यू नो I cannot take the name of that person but जब मैं नई आई थी तो यहाँ पे तो एक अंकल से मिली थी, तो इस अंकल ने कहा कि वो यहाँ पे आए और उनका बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप इतने सारे लोगों को यू नो इट्स ऑल पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी हु आर इन द थिंग। तो मैंने कहा कि इतने शॉर्ट 10 years में आप कैसे इतना यू नो यू गॉट सो मेनी पीपल फ्रॉम योर फैमिली। ही सेज ये and every person he was introducing, this is my sister, that is my cousin, this is my sister, this is, and a lot of women who were in part of his business. And I was like, what happened? He actually said he married every single one of them and he brought them here on a green card. He openly said it to me. He said, you know, he's like, अरे कौन देखता है, you know, nobody cares, and that's the way they brought them. I'm like, oh my god. तो Yeah, even I met one Uber driver as well as a lot of students, right? They also nowadays doing the same thing. They came to know that through regular process, green card takes a lot of time. So now they are following. One of the Uber driver actually, he got married to some other girl, and he paid $50,000 to her and stayed with her for 2 years. Contract marriage basically, and after that got divorced, got the driver license, went back to India, Punjab, and got married and came back here. Correct. So there are also people, I mean, so ये अभी भी होता है क्योंकि अमेरिकन ड्रीम उनका ऐसा है, but they think that you know their life here is much better. There are people who have families back in India, लेकिन यहाँ आके अलग से शादी कर लेते हैं बस ग्रीन कार्ड के लिए या you know citizenship के लिए, and then but there's a movie that was made on this, right, on this exact same ये टॉपिक उठाया। अच्छा तो यहाँ पे एक हाथ में जो मेघा जी गा रही थी कल हो न हो, जहाँ पे एक वेल सेटल्ड अपर मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स हैं, तो यहाँ पे एक और मूवी जो आई थी काइट्स करके, वहाँ पे इट इज़ द स्ट्रगल्स ऑफ अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट as a musician, not as a typical, you know, वो भी Las Vegas, Nevada on this coast completely, and how $50,000, my goodness, that's quite a lot of money.
$50,000 is a lot of money. Some Yeah. people will do it for 5,000 and all. Oh, really? Yeah, I've Oh heard. my God, different scales. No, now got increased actually. Oh, So it's no more 5,000. I'm sure it is. How do you know, Babu? Market dependent. Well, you know. Because lot Needs of based. students know they are now a Uber driver. Huh. So, and as a human being, I cannot keep myself quiet when I am in Uber. Not human being. As passenger. Sapanda, you I can't keep yourself talking quiet. and then they come out They share, of yeah. those information. Right. So, in fact, there was a movie that was made which talked about how this guy actually marries for he makes side income उसका है कि लोगों से शादी कर ले और उनको green card दिला दे. Yeah, but they show that it also is a bad thing, no? In the end of the Yeah. day, he passes. I don't want to give out the plot. Yeah. In that movie also, it's a sad ending, right? The movie. I mean, I thought the way it ended was like what. लेकिन उस मूवी में एक बहुत खूबसूरत गाना है. हाँ, वो गाना गाने से पहले गायक को बुलाया जाए हाँ. और उसे कंफर्म किया जाए क्या गाना गा रहे हैं. हाँ, करेक्ट. और उनसे पूछ लेते हैं कि उनका फॉरेन वाला सपना क्या था, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है अमेरिका उनका फर्स्ट स्टॉप नहीं था, वो कहीं और गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पे आए. Oh, really? या तो उनसे पूछते हैं कि उनका मोटिवेशन क्या था टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ इंडिया, फॉरेन जाने का. नमस्ते प्रणव जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया. हाँ, तो बताइए सर, आपका जो फॉरेन वाला इंस्पिरेशन कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ, मेरा फॉरेन इंस्पिरेशन था. माय फैमिली वाज हियर. मेरे ब्रदर, सिस्टर, माय पेरेंट्स, दे वर ऑलरेडी हियर. हाँ. बट वी वर नॉट रिच फैमिली, सो जैसे फैमिली स्पॉन्सरशिप, दे देमसेल्फ वर नॉट ऑलरेडी इन अ पोजीशन टू स्पॉन्सर मी. सो मुझे मेरा जो उद्देश्य था कि कैसे मैं आऊँ, सो क्योंकि फैमिली से मैं 6 साल दूर था. बट आई गॉट माय मास्टर्स एंड देन बॉडी शॉप के उस समय तो बहुत होते थे ऐसे कंपनी जो लोगों को शेप आउट करते थे. सो दैट्स हाउ आई वेंट टू लैंडेड अप इन लंदन. वहाँ 1 साल रहने के बाद फिर आई केम टू यूएस. Wonderful. अच्छा, तो आप लंदन गए तो यू कैन कंपेयर द टू कंट्रीज, राइट? तो अगर आपको लंदन में ही रहने का मौका मिलता तो वहाँ पे रह जाते या आपको अमेरिका आना था एनीवे? वेल, लंदन में खाली 10 महीने था, सो मैंने यूएस देखा नहीं था, सो इट्स हार्ड टू कंपेयर एंड लिटिल नॉलेज टू कंपेयर द जस्टिफिकेशन. बट ऑब्वियसली फैमिली वाज हियर, सो माय हार्ट वाज हियर, सो इसलिए मैंने फॉलो कर किधर. And now your bandhus are here. बट मैंने जहाँ तक सुना है कि लंदन में नेचुरल ब्यूटी बहुत काफी है कंपेयर टू अमेरिका. बट कॉस्ट ऑफ लिविंग आई थिंक वहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू अमेरिका. आपका मतलब कि नेचुरल ब्यूटी मतलब वहाँ पे लेडीज मेकअप लगाते नहीं है? नहीं ऐसा नेचुरल ब्यूटी इज एवरीवेयर. वी ट्रैवल टू यूरोप आल्सो, बट अमेरिका इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. सो आई थिंक हार्ड टू कंपेयर. नहीं, मेरे को लगता है वहाँ पे ज्यादा मेकअप लगाते हैं ना प्रणव जी. मैं उस नेचुरल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं नेचर ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी. ओके. मैं सोचा नेचुरल ब्यूटी इज लाइक पीपल नॉट वेयरिंग मेकअप. मैं यहाँ पे मेकअप लगाता नहीं हूँ ज्यादा. अच्छा, मैं भी नहीं लगा. मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं लगाता नहीं हूँ. कुछ नहीं. अच्छा, बाय द वे, लेट्स आस्क प्रणव जी, आई वांट टू क्लैरिफाई विद यू. आप एक गाना गा रहे हो हमारे लिए ना? यस. कौन सा गाना है? कंफर्म कर ले ताकि वरना लास्ट टाइम लॉकडाउन हो जाए. जिंदगी 2 पल की. ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये फाल्तू का फेवरेट सॉन्ग है. हाँ, या आई लाइक दिस सॉन्ग. क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन है इसीलिए. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन इस मूवी में मेरे को ऋतिक रोशन पसंद नहीं आया एक्चुअली. कुछ भी. इसका अफेयर हो गया था वो बारबरा मौरी के साथ, तो मेरा दिल टूट गया. कुछ भी. पूरा फिल्म है देखी हो. मुझे मालूम है कैसी देखी. मैं बस तेरे को देखा था क्या है, कैसे लोग हैं. तो वहाँ पे मेरे को फिल्म देखने को नहीं मिला एक्चुअली. अच्छा. I was like totally embarrassed walking around with you that day in theater. I think that's झूठ बोलता है. थिएटर में नहीं देखा मैं, वो one of those streaming services पे देखा था. हाँ, देखा. तभी तो मेरे को इतना ये बहुत घिन हो गया मुझे. My God. तो इस मूवी में ये भी दिखाते हैं, राइट? कि I think they also talk about the struggles of how people get entangled with crime. Yes. That's a different angle here, but it's very common. Like it's a struggling immigrant just like us, and then of course how you get into and that situation. हाँ, and अपने ही लोग कभी कभार हमें फंसा देते हैं, right? Yes, exactly. That's what this whole Really? yeah. It throws a very different light on the Desi mafia. So, Yeah. yeah.
So ठीक है, take it away, Pranav ji. We'd love to hear that particular song. जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी दो पल की. मैं तुम्हारे छुपा दी है मैंने तो अपनी निगाह, अब तुम भी इसको संभालो हमें अपना सोच कहा, एक दिन दो पल की जिंदगी, दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला. छोटा वादा इस उम्र से ज्यादा सच्चा है सनम, हर मोड़ पर इसलिए साथ रहते हैं अब दोनों हम, दोस्ती दो पल की जिंदगी, दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी दो पल की जिंदगी. बहुत को वेरी नाइस. इनफैक्ट आई वुड से ये आपका चॉइस बहुत अच्छा था. हाँ, एग्जैक्टली. दिस इज वेरी नाइस. ये आज से आपका नाम पे आ जाएगा पूरा. नहीं, वो भी रहेगा, डोंट वरी. आपका जो फेवरेट गाना ना प्रेम पुजारी का. हाँ. हाँ. ठीक है. तो लेट्स गो आगे एक्चुअली फादरानी. हाँ. I was just thinking about this. ये एक तो ये है, right? We talked about struggles of people who come here as foreigners. हम लोग यहाँ पे foreigners आके foreigners ही रह जाते हैं, actually speaking. Yeah? Yeah, I don't think people ever say, oh, I've become a part of America. हाँ, you get a citizenship, the paper मिल जाए, सब मिल जाएगा. लेकिन रहोगे आप, foreigner ही.
मतलब क्या है, तो तुम्हारा अमेरिकन ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, ये बोल रहे हो? अमेरिकन ड्रीम फुलफिल हो सकता है, लेकिन एक फिल्म में एक ब्यूटीफुली दिखाया गया है, एंड यू इवन टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू नो यू कांट ट्रस्ट योर ओन पीपल समटाइम्स, द देसी माफिया एंड एवरीथिंग, राइट? वेल, देयर इज अ वेरी नाइस मूवी कॉल्ड आई डोंट नो इफ यू सॉ इट, इट वाज कॉल्ड न्यूयॉर्क। बाबू आपने देखा फिल्म न्यूयॉर्क? हाँ जी, फिर से एक बार बोलिए। नहीं, मूवी नहीं देखा, बट लेकिन मैंने सुना है It's आफ्टर सर्टेन इवेंट, जो कि मतलब टेररिज्म हो जो भी हो, हाँ. कैसे फॉरेन पीपल गेट अफेक्टेड इवन दो दे आर नॉट इन्वॉल्व प्रॉपर्ली। Correct. तो उसी का मूवी दिखाया है। Correct. Yeah, And it's very nicely depicted. It's very nicely, and John had done an amazing job here. John, Neil, and also Katrina Kaif were there in the movie. It's about the life of people, immigrants who come there. They come in, I think they come in like you know, Students, like right? students. इधर से आते हैं, and then they you know they get together and things like that, and life happens and all this stuff, and very beautifully shown how a very innocent life can suddenly become, you know, can change in a foreign land. Yeah, actually, what they try to show is how the Muslim stereotype happened after that. So Correct. they had this baggage. Yeah. Yes. So वो दिखाया उसमें. Very Right. true, and that still is there, and unfortunately in America it's still there. Why America? All over the world is still there. People are suffering from all those things, stereotypes and everything. Race is a big question being talked about here in America right now. In fact, going all over the world, all those things are happening. But that film is an excellent movie to watch to understand. And I think one of the realistic movies about the challenges as immigrants what we face. Yeah, exactly. Right? And foreign में आके foreigner हो जाते हैं हम लोग, right? Foreign हो जाते हाँ, हैं। exactly, क्योंकि फॉरेन वाह देखा आप, अरे इसके लिए तो 100 मार्क्स मिलना पड़ेगा प्रणब जी। हम फॉरेन में आके फॉरेन हो जाते हैं। Immediately it become foreign. Yes, yeah, very yeah. true. It does, you know, a certain, especially 9/11 के बाद तो oh my god, कितना सारा profiling शुरू हो गया, my हाँ, goodness. we are NRIs, but the meaning changes. India के लिए we are non-resident Indians, यहाँ पे we are non-reliable Indians. Oh god. Unfortunately. what to do? Even in this movie, actually, that's the basic part they showed after 9/11, how immigrant people, especially from that Right. particular religion, I would say, right? How they got affected because of this 9/11 and post effect. Very nice movie. And नील नितिन मुकेश को इसके लिए actually best supporting award का भी award role के लिए मिला था award. Yes, right. Let's. I would like to invite one of our बंधुओं, विशाल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। तो आप अपना थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ाइएगा and let us know about your journey. What was your thing to come to America? What was your dream? आप भी पढ़ने के लिए आए, कैसे आए आप? मेरा actually my dream was I was in IT in Bangalore. Can you So keep your mic मेरा- closer to your? Exactly. Thank you. मेरा जो journey था that was actually I never wanted to be in America. Oh really? Oh, तो ड्रीम था कि भाई जैसे कि किसी भी बैंगलोर में टेक कंपनी में काम करने वाले का ड्रीम होता है कि we should go to on site for some projects and all those. हाँ. So I was always wondering अगर ऑस्ट्रेलिया या कहीं ऐसी जगह मिले, बिकॉज उससे पहले जो भी हमने देखा था दैट वाज न्यूयॉर्क डाउनटाउन, और बहुत ही वो मेमोरीज था, मतलब वो एक फोबिया था कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस, सो आई नेवर वांटेड टू कम डाउन टू अमेरिका, और सेटल डाउन तो कभी भी नहीं हुआ एक्चुअली। Okay. Okay. तो आई गॉट, जब ये मूवी आई थी न्यूयॉर्क 2009 में, एंड अगेन दैट वो जो डर था वो और बढ़ गया, मतलब हाँ. कुछ भी हो सकता है। हाँ. और वो 2009 was the year when I came here. Wow. Oh. Wow. So I got my visa पहले किसी और प्रोजेक्ट के लिए, and 2009 again that was a recession year. तो जिस प्रोजेक्ट के लिए वीज़ा लगा था वो प्रोजेक्ट बैंकरप्ट हो गया, वो कंपनी जो वो क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया, डिसअपीयर्ड। ऐसे ओके चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई डिडंट वांट टू गो, कंपनी भेज रही थी बट नहीं जाना है, ओके। पर 2 महीने बाद फिर ये प्रोजेक्ट आ गया, सो आई सेड ओके चलते हैं। 1 साल का था, ठीक है जाके आते हैं, 1 साल में वापस आना ही है। हाँ. एंड वो 1 साल का 2 साल हुआ, 2 साल का फिर उसका अरे सच बताओ ना, 1 साल में आप यहाँ पे आके हमारे रेडियो शो सुनने लगे। You don't feel like going on? और अभी भी देखो क्या चल रहा है, जो आजकल सिचुएशन चल रहा है, वी आर अगेन 10 साल देने के बाद भी वी आर स्टिल ट्रीटेड एज लाइक अ फॉरेनर। That's Yes. true. इन फॉरेन। That's true. That's Right. what I said. Yeah. So- But very good. ये गाना जो आप पेश करने वाले हो, it talks about passion, right?
passion. Yeah, so that was that. I'm coming to that. हाँ, तो वो 2009 में जब मैं आया था तो that was my passion कि जाके कुछ करना है. हाँ, I mean अगर मौका मिला है तो then just go do something, prove yourself. हाँ, So that is the dream everyone I think has, right, right? right. So so here it goes. Sure, please go ahead. आ रहा है. आने दो. जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारो जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू सा जीने में है जुनू सा सीने में है जुनू सा जीने में है जुनू सा सीने में कहीं जैसे कोई धुन बजे राहों में देखो है मंजिल सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह कहीं जैसे कोई धुन बजे राहों में देखो है मंजिल सजे सारे हम जहां में अगर सपने सजाने की हमको मिली वजह अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या यारो अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो अनजानों की फिक्र ना करती ये उम्र फिर क्यों भला डरो है जुनू सा जीने में है जुनू सा सीने में है जुनू है जुनू अभी जो मिलेंगे रास्ते पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे फिर हमें कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की कभी जो मिलेंगे रास्ते पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे हमें कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की ये बात
पता है क्या हुआ है क्यों बता, जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हकीम तुझे कल बुलाएगा, है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में, है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में. Thank you. Nice. I Oh, like very the song a nice. lot actually. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा है, आपका ऑडियो क्वालिटी भी मस्त है एक्चुअली. Thank you. All And thanks to Altu Baba. क्या बात है, सही है. And Madhujan, हम बताना चाहते हैं कि on this 4th of July, when every one of us has come into the United States, we're celebrating the life, liberty, and the pursuit of happiness that this land promises to every person who is here. Not just to its citizens, but to everybody who has come here seeking shelter. Well, it is a land of immigrants actually, so we can't say Indeed. anybody has been here forever. Exactly. Yeah. On this particular day, we are exploring कि हमारे जो क्या जुनून थे या है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे जो क्या कहते हैं जन्मभूमि है उसको छोड़ के बाहर यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, टोक्यो हो, पेरिस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ कहाँ मतलब कैसे हम लोग क्या अरमान लेके जाते हैं, क्या हमारे जो इनर डिज़ायर्स या पैशन या लाइफ के सिचुएशंस क्या हो सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, द अमेरिकन, एंड सिंस मोस्ट ऑफ अस आर हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल आवर सिंगर्स हियर आर लोकल, so we said one of the passions that they're all exploring is singing live on air, and of course it is, some of them may have sung in college, some of them may just be hobby singers, bathroom singers, some of them may have always cherished this secret desire to sing and found that they uncovered their undercover rock star. So वैसे आज हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे बे एरिया बक में, एंड ऑफ कोर्स बाबू मोशाय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने स्ट्रगल्स के बारे में बात किया अभी तक, राइट? अमेरिका में जो we've been talking about the immigrant struggles, like how विशाल जी sang है जुनून सा सीने में, लेकिन उसी मूवी में दिखाते हैं कि लाइफ के circumstances हमें कितने बदल देते हैं, राइट? And what it forces us to do. So go ahead. हाँ बताइए विशाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? You got to unmute yourself. Yeah, I would like to say again, ऐसे ही एक मूवी और था actually, वो था Love आजकल, which really resonates what I am personally going through. तो जैसे उसमें दिखाते हैं he went, सैफ अली खान, he got a good job Golden Gate में, and he very enthusiastic, goes every day with passion, and then after some time it becomes like monotonous, वही same routine. And I think lot of us had been going through this. So हम लोग जो यहाँ पे आते हैं वो एक robot की तरह काम करना शुरू करते हैं, and then we just go through that same routine. And I mean, and then after मैं जब 2009 में आया था, I've been listening to Radio Dehoties, right? तब से सुन रहा हूँ, but मुझे एक passion था अंदर से गाने का, और जो वो एक डेढ़ साल पहले ही हुआ शुरू, when I met you and we came to know each other more personally. तो वो एक monotonous जो routine था वो break down हुआ, and then I started exploring myself कि actually मैं और क्या कर सकता हूँ, rather than just going 9 to 5 job, जाके भाग के जाओ, सुबह उठो, तैयार हो, घर काम पे जाओ, वापस आओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, next day morning repeat.
राइट राइट तो वो जो एक मोनोटनी थी वो ब्रेक डाउन हुई हाँ. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ Right. कि मैं और क्या कर सकता हूँ राइट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अरे नहीं आप गलतफहमी मत रहो आप, ये रेडियो तो ऑलवेज था रहेगा ऑल्सो। द पॉइंट इज आपके लाइफ में क्या चेंज था ब्रूनो। हाँ अगर होना होता तो कनेक्शन कैसे होती है? And that's the part of American dream, right? Yes. एक घर होता है Yeah. and then एक घर के साथ-साथ एक pet होता है Yeah. and that becomes a family member and that's also a part of American dream. Very true. Thank you so much for sharing that with us and thank you for being a बंधु of ours also. या लेकिन एक बात तो है राइट, ये जो ड्रीम्स है इसको ड्रीम्स जो मतलब इसको बरकरार रखने के लिए कंटिन्यू करने के लिए एक्चुअली Bollywood played a very vital role. If you think, right, during those days, we didn't have the internet, we didn't have anything, and no information. Only Bollywood was the only media जहाँ पे हम लोग ये देखते थे, right? और इंग्लिश मूवी तो हम लोगों को देखने का अलाउड नहीं था क्योंकि वो हमारे एलिजिबल नहीं थे, राइट? उस समय पापा मम्मी बोलते थे नो इंग्लिश बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी, क्योंकि उसमें दिखाने का सीन कुछ और ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग गलतफहमी में थे एक्चुअली, राइट? हाँ Exactly. So that's what Bollywood actually played very vital role to keep our dream alive. Yeah. And all these movies, right, whatever we are talking about. Next movie है ये जवानी है दीवानी, जिसमें same thing they continued there. Ranbir Kapoor was the hero there. रणबीर कपूर का मूवी में एक चीज देखा गया कि उसका फॉरेन लोकेशन रहता ही रहता है। हाँ। जैसे ये देख लो बचना है हसीनो, जहाँ पे 3 लड़की के साथ वो फ्लर्ट की है। हाँ, सब फॉरेन लैंड में। 3 कंट्रीज में 4 कंट्रीज तो पता नहीं है। हाँ। मतलब की है फ्लर्ट की है वो मूवी भी, उसमें भी न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत दिखा है उसमें बचना है हसीनो में। अच्छा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये जवानी है दीवानी के बारे में आप बात कर रहे हो, उसका कैरेक्टराइजेशन कितना खूबसूरत है उस मूवी में और रणबीर ने कितनी अच्छी तरह से निभाया है उस किरदार को, जहाँ पे दिखाते हैं कि वो जो ट्रैवल वाला बग वॉन्डरलस्ट जो कहते हैं वो उसके ना बचना सिनो, अरे उसके बारे में छोड़ो यार, हम लोग ये जवानी दीवानी के बारे में बात करते हैं कि वो जो कुछ लोगों में अगर यू नो द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद व्हाट आई फील टू, मेरे को वो वॉन्डरलस्ट है, आई जस्ट वांट टू बी एबल टू जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्सप्लोर थिंग्स, लिव ओवर देयर, यू नो इन ईच प्लेस। फादर के टाइम पे बचना कुंवारो था एक्चुअली। ए व्हाट आजकल मेरा पूरा कैरेक्टर खराब कर देगा। और मैं खराब हुआ तो मैं क्या करूँ यार, मैं बोल रहा हूँ जो है तो बोल रहा हूँ। तो वो जो था मतलब उस मूवी में पूरा दिखाया, राइट, द मेन रीजन उसका जो वो प्यार को भी त्यागने के लिए तैयार है बिकॉज ही वांट्स टू गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सेम टू सेम लाइक फाल्तू भी सेम है ना, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, सिंपल। अरे इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो डू डिफरेंट थिंग्स, देखिए उसमें एक्सेल इन समथिंग ना, वाज वेरी गुड फोटोग्राफी दैट गाय। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो वहाँ पे उस मूवी में गाना है कबीरा बोल के। हाँ। तो उसके लिए मैं शशि को इनवाइट करना चाहूंगा। शशि, वेलकम टू गीत गाता चल। तो शशि जी आपका यस लाउड एंड क्लियर। तो आप बिफोर यू गो, या गो अहेड फरजान। नहीं, so we wanted to ask you what is it that bit you? Was it the wanderlust that brought you to America or was it in pursuit of higher studies? क्या था? It is actually the other, in pursuit of higher studies, and it was actually I was just going to a bookstall and I would buy my engineering books from that bookstall, and I saw this book called GRE, and I asked the book owner, what is this book about? तो उसने मुझे बोला कि ये जो अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं पढ़ाई के लिए, वो पढ़ते हैं, and that's basically how it was like serendipitous. I just stepped across it. That's when I started finding out more, and I said, okay, you know what, I can go abroad for higher studies, and I told my dad that I want to do that. And my dad actually first pushed back, saying, no, there's so much opportunities in India, why would you want to do that? But I still was stubborn, and I kept on it, and I came here. But वो जो wanderlust आप जो बोल रहे हैं, जो for moving abroad, that was there, and that I grew over here because I've seen pretty much everything in the United States, and I would now like to explore more parts of the world going forward from here. So आप बोल रहे कि इंडिया यूएस में आप सभी घाट से पानी पी के आए हो? बिल्कुल। ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक। Very good, very good. सर आलतू तू
इसके बहुत सारे मीनिंग निकाल लेंगे उनको मालूम है क्या मीनिंग्स होता है उसका घाट का. हाँ, तो ठीक है. सो वीड लव टू हियर द सॉन्ग रे कबीरा, राइट? बाबू मोशे, इज दैट व्हाट ही इज परफॉर्मिंग? करेक्ट. तो हो जाए फिर शशि. उनको 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है. रेडियो में उतना लंबा टाइम जो है किसी स्पॉन्सर को दे तो बहुत उनका तो सेलिब्रेशन हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा. तो अगर हम ऐसे देते रहे तो दिवाली निकल जाएगा हमारी. तो या ही लाइटेड अप फ्री बेस बजा. लेकिन आप तो सुन रहे हैं बेरिया बकबक एंड ऑफ कोर्स एज यू नो, अरे म्यूजिक चालू हो गया तो मतलब लेट्स गेट बैक शशि. गो ऑन शशि, टेक इट अवे. चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़गानी ले गई. नूर बनो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़गानी ले गई. रे कबीरा मान जा, रे कबीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया. टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराई रास्ता देखे. टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे. दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराई रास्ता देखे. यारी गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई. यारी गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया. Wow, बहुत बढ़िया. Thank you very much, Shashi. Thanks a lot. It's a very beautiful song. And movie भी बहुत बढ़िया है. And I feel one of the mature role Ranbir Kapoor played in this movie. Very beautiful. Thank you so much. Right. तो हम लोग रणबीर कपूर के वॉन्डरलस्ट के बारे में बात कर रहे थे, राइट? इस कैरेक्टर के वॉन्डरलस्ट के बारे में. एंड वन थिंग दैट
you know happens, especially जो इंडिया से बाहर निकलते हैं, इंडिया ही नहीं बहुत सारे हमारे जो बंधुज हैं, हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे बंधुज हैं, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फीजी से बहुत सारे बंधुज जो सुन रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग यू माइट हैव गॉन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कुछ लोग हांगकांग जाते हैं. But wherever we go, Faltwani, you know what we are called there, right? What are we called? We're all called as legal aliens. Yeah, that is true. Well, एक चीज़ है लेकिन आलतू बाबा, जब वहाँ से निकल जाते हैं, राइट, जब हमारे you know इंडिया में इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, generally what happens is we don't see that वो nationality. I don't think we see when we come out of you know, when you come into a foreign land, you kind of you know, you look the same, you kind of speak the same, वही उर्दू बात करते हैं, वही हिंदी बात करते हैं, एक ही किस्म के टेस्ट हैं, you know, सभी को, उनको भी दाल पसंद है, हमें भी दाल पसंद है, उनको भी रोटी पसंद है, हमें भी रोटी पसंद है, you know, that kind of thing. And you listen to, उनको भी शाहरुख खान पसंद है, हमें भी शाहरुख खान पसंद है. Okay, I know some of you. उनको भी चपली कबाब पसंद है, मेरे को चपली कबाब पसंद है. हाँ, वेज नॉन वेज बोलना ही था उसको. यार चपली कबाब खाई नहीं कभी तू? हाँ, ठीक है. चपली कबाब हाँ, तो हलीम बहुत पसंद है, हलीम. हलीम लेकिन मोर फेमस टुवर्ड्स आवर इंडिया साइड. वहाँ देखो हलीम. अरे हैदराबादी ना, इसीलिए. और क्या. लेकिन चपली कबाब कभी खाओ सर, मस्त है. तो एक यू नो ये अमेरिका हो या यूरोप हो, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि वो एक मूवी आई थी ना जहाँ पे अभी हाल ही में हमारे सुशांत सिंह राजपूत साहब जो गुजर गए, उनका एक मूवी था जहाँ पे ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. He's a student, right? He's an exchange student or something, and then he meets a girl from India, and the then girl has got like Donald Duck lips. face. Yeah. At that time, she had gotten all that work done anyway. But how they fall in love, and then that whole thing from you know, the Amir Khan character, the Tupko Files, I found that a little hard to believe, but you know, they had a lot of undercurrents in the movie. They were talking about religion and politics and this and that, and how you know, they talked about how boundaries get wiped out when you're overseas. A lot of times जो हमारे दिमाग में जो boundaries हैं वो wipe out हो जाते हैं, and then जब वापस चले जाते हैं या जब politicize करके उसको लगा देते हैं तो कितने मुश्किलें आ जाती हैं, right? That's what that movie was about, right, Dada? Do you know, have you seen the movie PK? Yeah, I have seen that. Exactly, you are right. So अपने मतलब सबके अंदर एक्चुअली बहुत सारे बाउंड्रीज रहते हैं, चाहे वो इंटरनल बाउंड्री हो या रिलीजियस बाउंड्री हो, एंड दैट एक्चुअली प्लेज वेरी big role, dangerous role. Yeah. Field and communicate with others. That actually that conscious minds, whatever your thought process actually when you deliver, that can create the problem. But I want to ask you, Bhavamish, I want to ask you, क्या आपने पीके देखा? Yeah. तो बिना पीके देख सकते हो ना? मुझे मालूम था. बिना टल्ली होके भी देख सकते हो. नहीं, मतलब पीके देखने का जरूरत था. आराम से बिना पीके देख सकते थे आप. लाइक वेरी बैड. तुम्हें पता था पीके जो नाम पड़ा उससे पहले मूवी का नाम था टल्ली. Really? फिर राजकुमार हिरानी ने उसको चेंज करके किया, एक था टल्ली. फिर बाद में देखा कि एक था टाइगर ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, प्रोडक्शन में ऑलरेडी चल चुका है. फिर उन्होंने चेंज करके ये पीके नाम रखा. पीके होगा. हाँ, exactly. So उस मूवी से एक गाना हो जाए क्या? Why not? हो जाए. जो अभी उस मूवी से बहुत सारे अच्छे गाने हैं, सोनू निगम साहब के भी हैं, like you know, भगवान है कहाँ रे तू, and then there's a lot of beautiful songs, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पे फिल्माया गया एक ही गाना है शायद, right? Let us go. Yeah, so हमारे बेर है कि सुशांत सिंह राजपूत को बुलाएंगे हम लोग. कैसे सर? गणेश जी I'm doing excellent. Altu Baba Falturani, आप कैसे हैं? Wonderful. You know why it says that you're a bear Sushant Singh Rajput? You know why? Why? He also look at how fit he is. I know, that's true. Yeah, he'll fit for that song. Tu mera boyfriend, main teri girlfriend. Oh, Altu Baba, I have a question for you. Talking about bodies and COVID virus and aunties in couple of things. Do you know why aunties never get infected with COVID-19 virus? Good one. Good question. Why? Because they have antibodies. Correct. Good one.
But actually, aunties are dress kachli, by the way. Why? They don't have antibodies nowadays. They're losing weight. Yeah, that's true. Yeah. Hey, continue. So we got to... continue. Ganesh ji, we got to ask you, आपका जो foreign वाला सपना, उसके बारे में बताइए. How did you get here and what was it that... I know you've been here for a few years, although you don't look it. So Sure. बताइए. Yeah, so I came to US in 1988, and What? so Really? this was like immediately after I finished my undergrad engineering. I thought you were And born in that those time. days, what? I thought you were born that time. No. Okay. So, but in those days it was like a pipeline. So like right from our, second year engineering, we start planning and all that stuff. So it was more like just like planned. I was 22 years, so I didn't really have any wisdom of the world to map out my life. It's like everybody was doing, so I'm also going to go to US for studies. It's not adding up, sir. Sorry, one sec. It's not adding up. 22 years, you look Although like you 32 don't need right to now. do all that, be quiet. What? He looks 32 right now. 10 years doesn't add up, yaar. Yeah, but Thank you, Dujan, thank you. if there is one person that has really reversed Aging. Who has it found the founder of youth not sharing with us. Yeah, it's in his backyard, by the way. Yeah. That is our Ganesh ji. Sorry, continue. Thank you. So basically, yeah, so I just came out. I had no idea what I'm going to learn, but I always enjoy learning new things. So in my stay in US for a long time, I've learned lots of things, but probably the most valuable and the unique thing I think you get to learn only in US, probably nowhere else in the world, probably even in India, is that this whole concept of helping strangers, like people you don't know, you haven't even seen, you haven't met, you're going to get nothing from them, yet you help them just for the sake of helping. And that was very confusing for me because I came to South Carolina, the southeastern parts of US, and you had all these Americans who would come and help us. They wouldn't even ask what our name is, give us stuff and take us out for shopping. And that was very confusing because typically in India we are brought up with the mindset that you work hard, it's a very competitive world, you come out ahead, study well, get a good job, become a good accumulator, build a big house, get status and all this stuff. But this whole concept of helping some random stranger on the street was just never taught to us. So I think that's probably the biggest gain I have gotten from coming to US. And I see that in Altubaba, Falturani and Media Mahima and all that. Like, for example, when you set up Health 360 and all that, I was blown away. You're doing something, literally giving something valuable for free at your own expense, just for the sake of making a difference to somebody's life. So, kudos to you. ये बात सच है गणेश जी यार. आल्टू बाबा, आल्टू हमारे all बंधुस basically. ये आपने बिल्कुल सही फरमाया. बिल्कुल. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Love you all. Yeah. Enough, yeah. You made us cry enough. But don't stop. Continue. But thank you. Yeah, go ahead, Ganesh. So, thank you from my bottom of my heart. So. Thank you. But now give us the opportunity. Thank you for singing the wonderful song for us. Yes. Sure. Take it away. I will sing that song right now. And this is a song for the movie PK Banjam, picturized on The late Sushant Singh Rajput, and of course, Yes. Anushka Sharma. Yeah, this is my tribute to him. He just touched a chord in all of us. So here's the song to Sushant, wherever he is. बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे. बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रखे परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो न साथ मेरे,
सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, रंपा रे रंपा रे रा 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 रे, रंपा रे रंपा रे रा 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 रे रा रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम, ये ला 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 ला। तुम सा मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, रंपा रे रा 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 रे, रंपा रे रंपा रे रा 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 रे, हे 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 ला ला बहुत महसूस करके आपने गाया. Thank you so much for that. We were actually enjoying the flow, the way you were enjoying the song. Yeah. Thank you so much. Baba Mashai? Baba Mashai? Yeah, it's a very nice song. Yeah. And very nice movie also. Yeah. And movie talks about a lot of things about our understanding in terms of religion and everything. Superstition also. But yeah, Really? songs. I thought only about it was an alien movie, right? He just thought everybody's alien out here. Alien तो एक बहाना है, उसके पीछे सारी कहानी है. That's true, that's true. Well, actually, I think, thank you so much, Ganeshji, for actually bringing that song and also talking about something very important which I noticed. And I think I would think of one more song, which actually, one movie which was a fun movie but talks about this, how you connect with people when you come out of your hometown. Like, when you come out of your country, you get to meet other people and suddenly the bond increases. आप देखें क्या कभी? When you actually out of India, when you actually feel more Indian. That's something which I've seen, Baba Mashai. And एक ऐसा film है फाल्तवानी. This movie was called Cocktail. Yeah, that's true actually. When we find those people, no. Huh? Okay. Exactly. So there's one particular song which actually talks about, and we want to wrap this today's show with. Before we go to that song, right? Let me ask you, both of you, what was your dream and how it fulfilled, or basically what is your dream basically about your foreign countries coming here? Faltoni is going to share because she's going to sing, right? Why you're not going to sing, is it? You're going to share yours. What is your foreign dream? See, I love my country, but my country doesn't love me so much. What, man? Yeah, it never wanted to keep me there. Just threw me out of the place. Oh God, he's like terrible. Yeah, I never got. I went there and I went into the Middle East trying to do something like achieve something great and all.
did it, had a wonderful time, and then I came over here. I started doing things which I wanted to do because I worked in the corporate world for quite some time, and then over here I got an opportunity to do what I love to do and love doing. And then studied, business psychology, where I became a consultant for businesses out here. Very interesting. Now got into radio without even knowing. Got pushed into it. Yeah. So nothing was planned for me. I took it the way it came. Sorry, seriously, I'm sorry. I don't mean to disappoint anybody out there. मैं कभी plan नहीं किया. Whatever happened. I took it the way it came, and it was nice. Thank you so much for that. Okay. Wow. But that's true, actually, right? So you plan something, but if it doesn't go in your way, you accept it. I don't plan. That's why I don't plan at all. There is a plan already in place. कहते हैं ना कि live तुम्हारा मैं थोड़ा तो lemonade बना लो. No, Baba, the point is if you plan, okay, good. You might think you're planning, but actually you're not planning anything. I have a different show we'll do about and why I talk that way. But the thing is, if you think you're planning, you're not planning it. It's just happening and you're just saying, oh, I did something. That's what I feel. But in my case, I didn't plan to be where I am today, but I am today because of you guys, and thank you so much for that. As much as I realize. Yeah. So I give thanks every day for whatever I am doing today. If I'm here breathing, it's because of all your love. Yours also, Fatwani. But again, always Fatwani, always. And Fatwani ka acha hai, Sapna. She's like the typical wanderlust, whatever that. She's like female Ranbir Kapoor, by the way. From the movie Ye Jawani Zawani. Fatwani, go ahead. I don't know. I guess my foreign dream started when I got my first Enid Blyton novel. Yeah. My mom gave it to me when I was 3.5. I started with Noddy, and then after that, मैंने एक Milton Boons. Milton Boone is not Enid Blyton. Altu Baba, तू पढ़ता भी नहीं है, तू क्या बात करता है? Seriously. Enid Blyton का there used to be these boarding school वाले stories, Mallory Towers and St. Clair. So मुझे यूरोप जाने का बहुत मन था. आज तक नहीं गई हूँ. Books में क्या होता है कि छिप-छिप के boys से मिलना होता ना, वो सब अच्छा था. अबे नहीं यार, कुछ भी बताता रहता है. बाप रे. Badhujan, please, no, it's not that. Boarding life वही तो होता ना, तभी सही में यार. तेरा लाइफ ऐसा हुआ होगा आलतू बाबा, ऐसा नहीं है. But I always for me I guess I always wanted to go outside India. He's kind of sort of right, the character of Ranbir Kapoor in that movie. I always wanted to travel the world, and even today I don't like to sit in one place. Yeah. I like to go from place to place to place, explore. And she loves to dance on tables. Yeah, what? Wait, that Ranbir Kapoor does that, the thing. Well, whatever nonsense. That's not true. Anyway, I like experiencing different types of cultures, different types of people, and if I had, that was my long lost dream. I always wanted to have, what do you call, wings, and I could fly away wherever I want. Or if they deliver that kind of technology to us, maybe Ganeshi and Nvidia will probably one day do it. We don't know, where you can actually think, I want to be at this particular place. You can transport yourself and teleport yourself there. So I want to be able to do that kind of thing. So मेरा हमेशा वो सपना था, and that's how I came. I mean, I'm blessed in a way that I've traveled to a few countries, and then I came to the United States. So sweet. लेकिन एक चीज़ है, that one thing we found in the United States of America is that we found a family away from a family, because in India we were a very nuclear family. India में भी थे, लेकिन सिर्फ मम्मी पापा और हम लोग थे, तो there really wasn't that connection, so to speak. But it became more after after coming here, when we found all of you. And I'm not saying this just for the sake of saying it, Bandhujan. Every single bandhu who's here, we found allies in our bandhus. We found bandhus here. And truly, this is a land that I truly believe makes your dream happen. And that pursuit of happiness that we come with, that quest that we come with, a lot of us, you can make your dream happen in this country. That's one wonderful thing about this land. And I think that's and it's all thanks to the wonderful family, all of you who are here. And I think that's a befitting segue into the song that I want to sing. Let's do it. Party के लिए तो हाँ निकलते हैं इंडिया से कि yeah, I want to have my freedom, I want to be able to party, I want to be able to go dancing, I want to, whatever time of the night. मम्मी नहीं बोलेगी कि ऐसे all that stuff, इतने short skirt मत पहनना, ये मत करना, वो मत करना. But
at the end of the day, when you find people that you connect with, that's what makes life worth living. Yeah, one of the things Father loves to do, go to rave parties. The song is from the rave party only. Oh no, you don't? You didn't? No, I did go to rave parties. But you wanted to? Yeah. Well, No. nice songs at a rave party. Yeah. Go on, we're waiting for the song. Okay. Here you go. It's coming up. It's coming up. Wait. Coming So up. this is from the movie Cocktail, Panjan, and nothing can be More intoxicating than cocktail? No, friendship. Yeah. यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब याद करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Every time, every minute of the way, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, जब क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, जब क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका। रब यार गले ले साथ मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तू जीत मेरी जग हार मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Every time, every minute of the day, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। बन के चाहत नजरों से खत लिखना, तू है जैसा मुझको वैसा दिखना। बन के चाहत नजरों से खत लिखना, तू है जैसा मुझको वैसा दिखना। बेसब कसूर साथी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तू पास मेरे जग पास मेरे, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। ओ तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Every time, every minute of the day, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही।
And that was us going away song for all the bandus out there, क्योंकि आप भी हमारे बंधु हो. And of course, Vinajan. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत बढ़िया. Thank you. That was awesome. Oh, thank very you, nice. thank you. I've Yes, trained sir. her very well. मैंने उसको अच्छे से ट्रेन किया है. Very good. हाँ, बहुत बस हो गया आलतू बाबा अभी. बस में गाएंगे ना, बस में भी गाएंगे, डोंट वरी. फालतू बोलती है बस कर. अरे हम लोग बस में गाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन ये सच में दिल से है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे होम इज़ वेयर द हार्ट इज़. हम लोग फॉरेन ड्रीम्स के साथ आते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका दिल आ जाता है, राइट, फ्रॉम देयर यू रियली डोंट फील लाइक गोइंग wherever it is. Like Pranab ji pointed out when he talked about how wherever he was in London, a beautiful place to be, but his family was here, his heart was here. No, his heart is always with him. Huh? Yeah. Oh, no, I'm not talking about that. What? Not that who. That is who. His heart is with Jayashree. Simple. That's true. Let him say no. Is he? Where is he? There you go. Your heart is always there with you. I know that. But truly, when you find people and bandhus, and this is something that we are eternally grateful to Mahima ji for giving us this opportunity, where she actually told us कि these are not listeners. लोग बोलते हैं listener लोग, और लोग बोलते हैं कि सुनने वाले. हमारे लिए तो सुनने वाले नहीं है, आप तो हमारे चाहने वाले हैं. हम आपके चाहने वाले हैं. So she said this is the bandhutva, and truly the song is literally written for us. So this particular song, Tumhi ho bandhu sakha tuvi. So our dedication to all of you, and truly thank you for making our foreign dream so beautiful and so successful. It's in progress, but every one of you adds to it. So thank you so much. So sweet. Everybody's clapping right now. Yeah. So Babu Mashai, we have to ask thank you very much. मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतने दूर हम लोग यहाँ पे आए, राइट. मतलब we are busy with our professional life. Sometimes we forget also what is life about all this, right? But because of you guys, actually come back on track, and we came to know that this is the life about. It's not always work. Sometimes you need to enjoy your life also with your family, friends, and bandhus. And the kids and everybody, right? So thank you very much for that. Absolutely, Yeah, but absolutely. we never got an answer from you कि आपका फॉरेन वाला ड्रीम कैसा था. हमें ये मालूम है कि आप कितने पिक्चर कैसे पिक्चर देखते थे, वो हमें नहीं जानना है. बस ये बताओ कि फॉरेन वाला सिचुएशन कैसा आपका हुआ. मेरा फॉरेन आना कुछ मतलब ड्रीम्स तो नहीं था. पहले तो मैं कलकत्ता के बाहर कभी गया तो ओनली हैदराबाद. तो मेरे हिसाब से ओनली अगर पूरा वर्ल्ड बोले तो कलकत्ता एंड हैदराबाद, उसके बगैर कुछ भी नहीं था. हाँ. फिर एक दिन अचानक मुझे प्रोजेक्ट मिल गया यहाँ पे. मैनेजर बोला कि यहाँ पे जाना. वहाँ पे फॉरेनर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, he actually got sick and he wants to come back. तो मुझे यहाँ पे पुश कर दिया. मेरा ऑलरेडी H1 स्टैम्प हो चुका है, but I stayed 1 year actually back in India. कुछ प्रोजेक्ट नहीं था. तो फिर मैं देखा चलो मौका मिल रहा है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो पैसे के लालच में आ गया. फिर धीरे धीरे ड्रीम डेवलप हुआ कि ना कुछ करना है, कुछ अपना लाइफ के लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है. तो आया था तो मतलब 2 साल के लिए रहने के लिए. फिर धीरे धीरे 2 साल, जैसे विशाल जी बोले, राइट, 2 साल कब का मतलब अभी 13 साल होने वाला है. मतलब 13 साल अभी होने वाला है. लेकिन ये तरक्की हुआ ना सर, बिकॉज सिंगाड़ा से पैराडाइज बिरयानी से अभी यू एक्चुअली गो फॉर मैकडॉनल्ड्स फ्राइज. I like that. It's very nice. Exactly. Yeah. How did you लेकिन वैसे अगर आप if you are in Bay Area, right, you don't miss all those food also. You don't miss. I mean, Paradise बिरयानी यहाँ पर भी है, तो you don't miss Paradise बिरयानी. नहीं वो क्वालिटी अलग है. हाँ, बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वालिटी है. जो खाया उसको मालूम है क्वालिटी अलग. यहाँ पे बकवास है. हाँ, it's different, but मिल रहा है ना वो बहुत. नहीं क्वालिटी should be nice. हाँ. तो but सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बंधुजन for participating in this today's show. It's an awesome show, and because of you guys. Yeah, absolutely. And one thing करना चाहेंगे, क्वालिटी रेडियो है ना दी हॉटीज. Thank you. कैमरा को ऑफ करके अभी ऑन हो गया. एक बार और बताइए मेघा जी, आलतू बाबा को सुनाई नहीं दिया. I couldn't hear it. क्या बोला आपने?
मैंने बोला कि क्वालिटी रेडियो है ना, इसीलिए आपको क्वालिटी की चीजें ज्यादा पसंद है. Exactly. Thank you very much. You're right about that, Megha ji. 100% right. एब्सोल्युटली. एंड एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हमारे जो बाबू मोशाय बहुत ही चुप चुप है, वो इतना बता नहीं रहे हैं आपको कि वो कितने छुपे रुस्तम है. बाबू मोशाय गाते हैं, बाबू मोशाय ऑन एयर होस्ट करते हैं, ये सब किसी को मालूम नहीं था. इनफैक्ट इतने क्या 13 साल आपने बोला, 10 साल में या किसी को मालूम भी नहीं था जिन्होंने इनके साथ काम किया था कि इनके इतने सारे पैशंस हैं और इनके टैलेंट है. किसी को मालूम नहीं था. राइट बाबू मोशाय? या दैट्स ट्रू एक्चुअली. जब भी अभी फेसबुक में कभी कभार कोई पॉपअप हो जाता है, बोलता है यार तुम्हारा ये गाना सुना, तुम्हारा ये होस्टिंग देखा. यार जब हम लोग थे यूएस में, मतलब कुछ इनिशियली बंधु थे जो अभी इंडिया में बैक हो गए, तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. या बैक इन इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम लोग जब स्कूल में थे तुम तो एकदम चुपचाप थे, शांत थे तुम, मतलब दोस्त जो थे वो भी पता नहीं चलता कभी कभार, ऐसा शांत थे तुम. But yeah, everybody loves me nowadays. Of course, we love you. Yeah, thanks to Altu and Faltu to giving everyone chances. हम किसी को चांस नहीं देते, हम लोग चांस लेते हैं उल्टा. आपसे गाना सुनने का, आपसे बातें करने का, वो सब हम लोग चांस लेते हैं. हाँ बिल्कुल, हम लोग चांस मारते हैं. अच्छा लगता है. हाँ, आपके साथ डांस करने का, आपके साथ डांडिया करने का, सब कुछ हम लोग करते हैं. इसमें हमारा सेल्फिश ये भी है. हाँ बिल्कुल. बट थैंक यू सो मच. इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम जो है हम लोग क्लोजर पे लेके आते हैं. राइट. एंड थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. कुछ एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी गो, बाबू मोशाय? Anybody wants to share anything before we go, before we sign off from the 4th of July show? And let me quickly remind everybody, Geet Mala aane wala hai in the next by 7:30 we will be starting Geet Mala, which is our off-air show. So Babu Moshai, anything you want to leave our bandhus with? No, that's all. So thank you very much once again. And इसी तरह से हम लोग अगले हफ्ते आएंगे बे या बगमे में किसी और नए थीम के साथ. And but don't forget to tune in to Gizmala. अभी थोड़ी देर में चालू होने वाला है. Thank you very much. All right. Thank you. Good night. शब्बा खैर and प्यार भरा.